A big hi to everyone watching this video. This is the third part of chapter number 13, that is magnetic effects of electric current. So there are two more parts of the same chapter, that is part 1 and part 2. So in order to cover this full chapter, you need to watch those two parts also. Okay, so let's get started now. In the previous video, we talked about magnetic field due to current through a circular loop, magnetic field due to current in a solenoid, and obviously the third one, force on a current carrying conductor in a magnetic field. In this video, we will talk about electric motor, electric generator, and domestic electric circuits. So let's get started with electric motor. It is a device that converts electrical energy to mechanical energy. It is of two types, AC and DC. Here by AC we mean alternating current and DC direct current. Okay. सो इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. मींस अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जिसका मोटर होता है वो फंक्शन करता है. फाइन. Electrical energy is converted into mechanical energy by using of electric motor. Electric motor works on the basis of rules suggested by the Mary Ampere and Fleming's left hand rule. इलेक्ट्रिक मोटर का जो प्रिंसिपल है वो जो हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था उस पर वर्क करता है. सी व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर? When a rectangular coil is placed in magnetic fields and current is passed through it, force acts on the coil which rotates it continuously. With the rotation of the coil, the shaft attached to it also rotates. See, हमें एक rectangular coil लेना है. By coil I mean a flattened surface of metal, और एक हम metal का flattened surface या फिर कुछ hard substance का एक rectangular coil ले सकते हैं. We will look for the diagram also. इसको हमें मैग्नेटिक फील्ड में रखना है. इसका मतलब हमें दो मैग्नेट्स चाहिए. ओके, वी नीड टू मैग्नेट्स. उन दोनों के बीच में हमें इसको रखना है. एंड द करंट इज़ पास थ्रू इट. जब हम इस कॉइल में करंट पास करेंगे तो इस कॉइल के ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा. ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट अ फोर्स विल एक्ट ऑन इट. इस फोर्स की वजह से इस कॉइल का रोटेशन होगा. ओके, और जब रोटेशन होगा तो इसके साथ जो शाफ्ट अटैच्ड होगा वो भी रोटेट करेगा. नाउ व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस? इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स. देयर इज़ अ आर्मेचर. व्हाट इज़ आर्मेचर? It is a rectangular coil ABCD which is suspended between two poles of the magnetic field. एक रेक्टेंगुलर कॉयल है जिसकी हमने बात की. इस कॉयल को हमने ABCD बोला है जो कि एक मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में है. The electrical supply to the cell is connected with the commutator. Okay, हमें एक इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए. Then we have commutator और split ring. इसमें हमने एक split ring का यूज़ किया है. Commutator is a device which reverses the direction of the flow of current through a circuit. हमने split rings दो हमने rings रखी हैं जो split है. These rings are not connected, जिसकी वजह से जब करंट का सप्लाई होता है तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है. इट इज़ ऑफ टू हाफ्स ऑफ द सेम मेटालिक रिंग. एक मेटल की रिंग है जो दो हाफ्स में डिवाइडेड है. देन वी हैव मैग्नेट. Magnetic field is supplied by permanent magnet. Okay, sliding contacts or the brushes which are fixed. Brushes हैं जो कि fixed हैं. Then we have battery. Okay, it consists of few cells. So this is the construction of electric motor. Fine. So here we have a picture of simple electric motor. Now let's concentrate on the diagram. हमारे पास दो मैग्नेटिक पोल्स हैं. हम देख सकते हैं हाँ एक मैग्नेट के दो ऑपोजिट पोल्स दैट इज़ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. उसके बीच में हमारा ABCD एक रेक्टेंगुलर कॉयल रखा हुआ है जो मेटालिक है. फाइन. उसके बाद उसके ऊपर हमारे स्प्लिट रिंग्स हैं. स्प्लिट रिंग्स वी आर हैविंग. ये जो ब्राउन कलर के हमें दो रिंग्स दिख रहे हैं हाफ पोर्शन में डिवाइडेड है. उसके बाद उसके ऊपर एक कार्बन ब्रशेस लगे हुए हैं विच आर वेरी स्मॉल इन साइज. ओके, देन दिस कॉयल इज़ कनेक्टेड विद द बैटरी. Okay, and this whole system is kept between the two
पोल्स ऑफ द मैग्नेट। ओके, अब जैसे ही हमें सिस्टम का स्विच ऑन करते हैं, जैसे ये जो प्लग की है इसको हमने ऑन किया तो इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर हम लेफ़्ट हैंड रूल की बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल, ओके, सो द थंब इज़ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो हम इसमें देख सकते हैं कि जो करंट है वो हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, जो इसमें ऑरेंज एरो से हमारा इंडिकेटेड है ए पॉइंट के पास। अब अगर ये हमारी करंट की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड हमारा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल वैसे भी बन रहा है, तो जो हमारा फोर्स है ये ऊपर की तरफ लगेगा, टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, so due to this force, the CD side of the rectangular coil, it will come up. Okay, similarly the same process will continuously go on and the opposite sides. कभी CD पे फोर्स लगेगा तो CD ऊपर आएगा, फाइन। उसके बाद जब CD ऊपर आ जाएगा तो AB के ऊपर फोर्स लगेगा, देन AB will come up. So due to this continuous action of electric current and the magnetic field, a force will be applied and this shaft will keep moving. फिर जब ये पूरा सिस्टम मूव करेगा तो ये एक इलेक्ट्रिक मोटर की तरह बिहेव करता है। So this is the basic working of a electric motor. Let's read the working also. When an electric current is applied to the coil of the electric motor, it gets deflected because of the magnetic field. Okay. As it reaches the halfway, the split ring which acts as a commutator reverses the direction of the flow of the electric current. जैसा कि हमने पढ़ा कि जो स्प्लिट रिंग्स है जो दो हाफ में डिवाइडेड है, जैसे हमारा कॉयल हाफ वे पहुँचेगा, आधे रास्ते में पहुँचेगा, जो स्प्लिट रिंग्स हैं वो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देती हैं, उल्टा कर देती हैं। The reversal of the direction of the current reverses the direction of the forces acting on the coil. जैसे हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे, जो हमारा फोर्स का डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाएगा। द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स पुशेस द कॉयल। जैसे ही फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा, कॉयल पे एक पुश लगेगा, ओके, एंड इट मूव्स अनदर टर्न। देन आफ्टर दिस वो अपना अदर हाफ भी कंप्लीट करता है। Thus the coil completes one rotation around the axle. Continuation of this process keeps the motor in rotation. Okay. In commercial motor, electromagnet instead of permanent magnet, an armature is used. Armature is a soft iron core with large number of conducting wires turns over it. Large number of turns of conducting wire enhances the magnetic field produced by the armature. जितने भी commercial motors होते हैं उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ होते हैं परमानेंट मैग्नेट्स की जगह, और जो हमारा ये कॉयल है इसकी जगह एक सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ होता है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ मोटर्स? इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फैंस, पंपिंग वाटर और वाटर पम्प्स, एंड इन वेरियस टॉयज ऑल्सो। So let's start with another topic, that is electric generator. It is a device that converts mechanical energy into electrical energy. This is called electric generator. There is one very big difference between electric motor and electric generator. Electric motor में हम electrical energy यूज़ करके उसका mechanical energy में transform कर रहे थे, जैसे हमारा electric fan है, cooler है, okay, so all these things इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके हम उसके मैकेनिक्स या फिर उसके मोटर को यूज़ कर रहे थे। बट इन इलेक्ट्रिक जनरेटर हम मैकेनिकल एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे, फाइन। सो इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी हेल्प से हमें इलेक्ट्रिसिटी को रिड्यूस करना है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो रही है, ओके। नाउ कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। द स्ट्रक्चर ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज सिमिलर टू दैट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। जो बेसिक स्ट्रक्चर है एक मोटर और एक जनरेटर का, इट रिमेन्स द सेम। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर और इलेक्ट्रिकल आर्मेचर or rectangular armature is placed within the magnetic field of a permanent magnet. The armature is attached to the wire and is positioned in such a way that it can move around the axle. जो हमारा आर्मेचर है या फिर जो हमारा इलेक्ट्रिकल कॉयल है उसको इस तरीके से रखा गया है
कि वो एक्सल की चारों तरफ घूम सके। व्हेन द आर्मेचर मूव्स विद इन द मैग्नेटिक फील्ड अगेन, जो हमारा नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है उसके बीच में जो हमारा कॉयल रखा हुआ है, जब वो मूव करेगा एन इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट चेंजेस व्हेन द आर्मेचर क्रॉसेस द हाफ वे मार्क ऑफ इट्स रोटेशन। जैसे ही उसका हाफ वे तक वो पहुंचेगा, जो इलेक्ट्रिकल करंट का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा ड्यू टू चेंज इन द फोर्स। ओके, दैट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस वंस इन एवरी रोटेशन। हर रोटेशन के बाद जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। ड्यू टू दिस द इलेक्ट्रिक जनरेटर यूजुअली प्रोड्यूसेस ऑल्टरनेटिंग करंट। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो यूजुअली ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट? इसमें करंट का डायरेक्शन हर साइकिल के बाद चेंज हो जाता है। To convert an AC generator into DC generator, a split ring commutator is used. This helps in the production of direct current. अगर हम AC को DC में चेंज करना चाहते हैं तो एक split ring commutator यूज़ होता है. This helps in the producing of direct current. Electrical generator is used to convert mechanical energy to electrical energy. As I have already told you कि generator की हेल्प से हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, हम जनरेटर्स की बात करते हैं कि लाइट व्हेन दिस पावर सप्लाई कट्स ऑफ देन वी यूज़ जनरेटर। दिस इज़ द सेम थिंग, मैकेनिकल एनर्जी यूज़ करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। ओके, नाउ व्हाट इज़ AC एंड DC करंट? AC means alternate current. This is the current in which direction is changed periodically is called alternating current. Alternating current वो करंट होता है जिसमें करंट का डायरेक्शन चेंज होता रहता है। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पावर स्टेशंस जनरेट ऑल्टरनेटिंग करंट। इंडिया में जो भी पावर सप्लाई की यूनिट है इसमें ज़्यादातर पावर स्टेशंस ऑल्टरनेटिंग करंट यूज़ करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस आफ्टर एवरी 100 सेकेंड इन इंडिया। ओके, एक सेकेंड का जो 100 पार्ट होता है उतनी बार डायरेक्शन चेंज होता है। दैट मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इन इंडिया इज़ 50 हर्ट्ज। ओके, AC is transmitted up to long distances without much loss of energy. This is the advantage of AC over DC. जो alternating current होता है वो long distances cover कर लेता है बिना किसी energy loss के, इसलिए हम इंडिया में AC को prefer करते हैं instead of direct current. Now what is DC current? DC is obviously direct current. It is the current that flows in one direction only. It's called direct current. जो direct current होता है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स प्रोड्यूस डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का अगर हम सोर्स की बात करें, जो हमारे सेल्स होते हैं वो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करते हैं। नाउ एडवांटेजेस ऑफ AC ओवर DC। AC करंट का क्या एडवांटेज है DC करंट के ऊपर? सी, कॉस्ट ऑफ जनरेटर ऑफ AC इज़ मच लेस दैन ऑफ DC। अगर हमें ऑल्टरनेटिंग करंट चाहिए तो जो जनरेटर की कॉस्ट पड़ेगी वो कम पड़ेगी, बट अगर हम DC करंट यूज़ कर रहे हैं तो जनरेटर का कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा। AC कैन बी ईजिली कन्वर्टेड टू DC। AC करंट जो होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, उसको हम ईजिली डायरेक्ट करंट में चेंज भी कर सकते हैं। AC can be controlled by the use of choke, which involves less loss of power, whereas DC can be controlled using resistance, which involves high energy loss. अगर हमें AC को कंट्रोल करना है तो हम चोक्स यूज़ कर सकते हैं, बट अगर हमें DC करंट को कंट्रोल करना है तो हमें रेजिस्टेंस यूज़ करना पड़ेगा। और जब भी हम ज़्यादा रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं उसकी वजह से एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है। AC can be transmitted over long distances without much loss of energy. AC में करंट का डायरेक्शन बार बार चेंज होता रहता है तो उससे जो करंट का लॉस होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस में बहुत कम होता है। इवन AC मशीन्स आर स्टाउट एंड ड्यूरेबल एंड डू नॉट नीड मच मेंटेनेंस। ओके, जो भी ऑल्टरनेटिंग करंट यूज़ करने वाली मशीन्स होती हैं वो ड्यूरेबल होती है और उनको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नाउ व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज? एज एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। हर किसी चीज़ के दो साइड्स होते हैं, तो ऑब्वियसली अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी ज़रूर होंगे। नाउ लेट्स हैव लुक एट द डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज ऑफ AC करंट की क्या क्या डिसएडवांटेज है? सी, AC कैन नॉट बी यूज फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस और शोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एट इट रिवर्सेस इज पोलैरिटी। अगर हमें इलेक्ट्रोलाइसिस जैसा कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है हम वहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जैसे ही चेंज करंट का डायरेक्शन जैसे ही चेंज होगा हमारे इलेक्ट्रोड्स की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी।
तो हमें जो भी कंपाउंड गैसेस चाहिए या फिर जो कंबाइंड गैसेस चाहिए वो पर्टिकुलर प्लेस पे इकट्ठी नहीं हो पाएंगी. ओके, AC इज़ मोर डेंजरस दैन DC एज देयर इज़ नो पावर लॉस और एनर्जी लॉस. तो AC का जो स्ट्रेंथ होती है या फिर जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्ट करंट से बहुत ज़्यादा होती है. सो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर. वी कैन सी यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल है. यू कैन सी द रेड वन इज़ डिपिक्टेड एज द नॉर्थ वन और जो ब्लू है वो हमारा साउथ पोल है. और जैसा कि हम बोल रहे थे रेक्टेंगुलर कॉयल यू कैन सी मार्क्ड एज ABCD हमारा रेक्टेंगुलर कॉयल है. नाउ दिस कॉयल इज़ मेड अप ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर. कॉयल का मतलब ये है कि इंसुलेटेड कॉपर वायर का एक सर्किट बना हुआ है. ठीक है. नाउ इन द इलेक्ट्रिक जनरेटर हमने ये पढ़ा कि हम मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं. तो अब हमें चाहिए कि जो शाफ्ट है हमारा, फिर जो आर्मेचर है या फिर जो रेक्टेंगुलर कॉयल है, हमें इसको मूव करना है. जब हम इसको मूव करेंगे तभी हमारा इस मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगा. यू कैन ईजिली सी दैट द बेसिक स्ट्रक्चर इज सेम. इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है. द ओनली डिफरेंस इज़ ऑफ रिंग्स. यहाँ पे जो रिंग्स हमने यूज़ किए हैं ये स्लिप रिंग्स हैं और जो हम इलेक्ट्रिक मोटर में यूज़ करते हैं वो स्प्लिट रिंग्स होती हैं. ओके, एंड वन मोर डिफरेंस इज देयर. इलेक्ट्रिक मोटर में हमने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट जोड़ रखा है. जब हम स्विच ऑन करते हैं तो मोटर मूव करता है. ओके, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बट हालांकि हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो हम यहाँ पे पहले से कोई पावर सप्लाई नहीं देंगे. बट टू टेस्ट कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है या नहीं हुई है उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर अटैच करते हैं. यू कैन सी दिस G इन अ राउंड सर्कल. यहाँ पे G लिखा हुआ है राउंड सर्कल में. इट इज़ अ डिवाइस टू डिटेक्ट द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो अगर हमें चेक करना है कि कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है या नहीं हुई है वहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं. ओके, सो दिस विल वर्क इन द सेम मैनर. ये अनलाइक इलेक्ट्रिक मोटर में हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ हो रहा था बट हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर में राइट हैंड रूल यूज़ होगा. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज़ यूज्ड ओवर हियर. नाउ लुकिंग अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड. सो टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. अगर हमें ये चेक करना है कि फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा सो सिंपली वी हैव टू अप्लाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. ओके, सो नाउ लुकिंग अपॉन दिस. पहले हमें यहाँ पे एक ही चीज़ अवेलेबल है हमारे पास पहले से, वो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ है. तो जो हमारा इंडेक्स फिंगर है, ओके, द इंडेक्स फिंगर इट विल पॉइंट टू फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन. ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है. तो अगर हम अपने इंडेक्स फिंगर को इस डायरेक्शन में रख के देखते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारा फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है. जो हमारा मिडल फिंगर है दैट इज़ इंडिकेटिंग द फोर्स. तो जो हमारा ये शाफ्ट है रेक्टेंगुलर कॉयल है ये पहले डाउन मोशन में जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा. ओके, सो दिस शाफ्ट विल मूव. फिर जैसे ये शाफ्ट मूव करेगा, ओके, देन द अदर फोर्स विल बी अप्लाइड. फिर जो दूसरा पार्ट है वो ऊपर की तरफ आएगा, मूव करेगा. सो इन दिस मैनर द शाफ्ट इज़ गोइंग टू मूव. ओके, सो बाय दिस an इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट विल बी प्रोड्यूस्ड. और जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक करंट का इट विल बी फ्रॉम A to B डायरेक्शन ऑफ द कॉयल. अगर हम राइट हैंड रूल की बात करें तो जो हमारा थंब है ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा. डायरेक्शन विल बी फ्रॉम A पॉइंट टू द B पॉइंट ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉयल. सो दिस इज हाउ दिस इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स. नेक्स्ट वी हैव डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स. डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स मीन जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं जो हमारे घरों में यूज़ होते हैं उनका कैसे कॉम्बिनेशन बनता है. सी वी रिसीव इलेक्ट्रिक सप्लाई थ्रू मेन सपोर्टेड थ्रू द पोल्स और द केबल्स. हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है वो पोल्स या फिर केबल से आती है. ठीक है. इन आवर हाउसेज वी रिसीव AC इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 220 वोल्ट विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज. हमारे घर में जो भी पावर सप्लाई होता है वो अल्टरनेटिंग करंट पावर सप्लाई होता है 220 वोल्ट्स का और जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज. इसका मतलब हर सेकंड के 100th पार्ट में जो करंट का डायरेक्शन है वो चेंज होता रहता है. ओके, और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स में 3 टाइप के वायर्स यूज़ होती हैं. द फर्स्ट वन इज़ लाइव वायर विच इज़ रेड इन कलर एंड इट इज़ टर्म्ड एज द पॉजिटिव वन. Then there is neutral wire which is black in color and it is termed as the negative one.
Then we have the third one that is called earth wire, which is having green insulation, या फिर आप जो green color की wire बोलते हैं, ये हमारा earth wire होता है. It is for the safety measure to ensure that any leakage of current to the metallic body does not give any serious shock to a user. If we are working with some electricity stuff, और अगर उसमें कोई electricity का leakage है तो किसी को करंट का शॉक ना लगे, इसलिए हम अर्थ वायर का यूज़ करते हैं. ओके, नाउ लेट्स कम टू शॉर्ट सर्किट. शॉर्ट सर्किटिंग इज कॉज्ड बाय द टचिंग ऑफ लाइव वायर्स एंड न्यूट्रल वायर्स एंड सडन लार्ज करंट फ्लो. जब भी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर टच हो जाते हैं तो एक सडन लार्ज करंट फ्लो होता है. दिस इज़ कॉल्ड शॉर्ट सर्किट एंड इट हैपन्स ड्यू टू डैमेज ऑफ इंसुलेशन इन पावर लाइन्स. जब भी इनका इंसुलेशन ख़राब हो जाता है या जल जाता है तो ये जो दो वायर्स है, लाइव और न्यूट्रल वायर, दे कम इन कॉन्टैक्ट. जब भी ये कॉन्टैक्ट में आएंगे तो एक लार्ज अमाउंट का करंट क्रिएट होगा, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है. एंड एनी फॉल्ट इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, अगर हमारा कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव इलेक्ट्रिक आयरन ऑल्सो, ओके, तो अगर उसके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में या फिर उसका जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है उसमें कोई फॉल्ट है तो इसकी वजह से भी शॉर्ट सर्किट्स हो सकते हैं. हियर इज़ द पिक्चर ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स. वी कैन ईजिली सी जो हमारा ये ग्रीन कलर की लाइन है, दिस इज़ आवर अर्थ वायर. ये डायरेक्टली हमारे अर्थ में जाती है घर के अप्लायंसेस से कनेक्ट होके. लेट्स स्टार्ट विद द फ्यूज़ बोर्ड. सबसे पहले अगर हम घर में एंटर भी कर दे तो हमारे पास सबसे पहले बोर्ड आता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जिसको फ्यूज़ बोर्ड बोलते हैं. आफ्टर दिस वी हैव दिस इलेक्ट्रिक मीटर. ओके, आफ्टर दैट वी हैव दिस MCBs, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बोलते हैं, जिसमें घर के कनेक्शंस को ग्रुप करके कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके हमारे पास MCBs होते हैं. ओके, नाउ आफ्टर दैट वी आर गेटिंग 220 वोल्ट. अब 220 वोल्ट को हम घर के हर हिस्से में डिवाइड करके लगाते हैं. सो दिस इज़ द बेसिक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट. This is the picture of typical electric fuse. Many of you must not have seen this. Actually, these days the MCBs are used. Miniature circuit breakers. ज़्यादातर हमने आजकल घर में MCBs देखते हैं. तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है ये not very earlier but हाँ 5 to 10 years ago और मे बी बिफोर दैट ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ यूज़ में आते थे. आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो मेटालिक शाफ्ट है या फिर जो मेटालिक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है, इसमें फ्यूज़ वायर को रैप किया जाता था. तो इसको फ्यूज़ बॉक्स में जब हम इंसर्ट करते हैं, ओके, जब भी ऐसा ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट होता है तो ये जो वायर जो हम रैप करते हैं इस मेटालिक रेक्टेंगुलर पीस में, वो मेल्ट हो जाता है. सर्किट अपने आप ब्रेक हो जाता है. सर्किट अपने आप इसलिए ब्रेक होता है ताकि जो घर के अंदर बाकी जो अप्लायंसेस हैं उनका शॉर्ट सर्किट ना हो और उन अप्लायंसेस को कोई नुकसान ना पहुँचे. तो दिस इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ इज़ used so that the circuit breaks itself. Okay, so that's all for this chapter. We have completed all the 3 parts. हमने इस चैप्टर के तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और दिस इज़ द थर्ड पार्ट. और इसके पहले जो चैप्टर के 2 पार्ट्स और है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. So to cover the full chapter you have to go through all the 3 parts. I hope you have understood everything and gone through each and everything. And in case of any doubts you can always drop your comments or messages. Take care, stay good.